Hi everyone. So this is me, your Rakhi ma'am, and over here I've come up with the most awaited and demanding topic, that is the short notes. I actually promised you guys for these short notes basically, isn't it? Yes. So today I'm over here with the short notes for the very first chapter of 11th chemistry, and that is the some basic concepts of chemistry. Hope you like it. So within 15 minutes, or you can say less than 15 minutes, we'll be covering this particular topic so that you can prepare your short notes for the very first chapter of your chemistry textbook. Let's move ahead and talk about the same. But what I really want is that you need to hit the like button, subscribe the channel, and share this particular session right away this very moment. And the link of my Telegram channel that you need to join is Rakhi Akash Byju's J. Rakhi Akash Byju's J. Okay, let's move ahead without a single minute delay and let's talk about the short notes which you have to actually prepare for your basically understanding. And yes, when J means comes, you need to just see these particular short notes. They will be really very helpful for all of you guys over here. Now let's talk about first of all regarding the important conversion factors. Obviously you should know the conversions. Basically they are going to help you a lot in this chapter and the chapters that are soon going to come. Yes, so some useful conversion factors if I just want to talk about here, you can have a look. 1 dyne is equals to 10 raised to a minus 5 Newton. 1 ATM is equals to 101,325 Newton per meter square, which is also equals to 101,325 Pascal. You can also go for 1 bar, which is equals to 10 raised to power 5 Newton per meter square, and we can also write it as 10 raised to power 5 Pascal also. That's absolutely right. Over here, I have also talked about 1 angstrom, which is equals to 10 raised to minus 10 meter. If I just talk about 1 nanometer, okay, if I just want to talk about this 1 nanometer, this 1 nanometer is equals to 10 raised to power minus 9 meters. Always remember. If I want to talk about 1 picometer, so 1 picometer is equals to 10 raised to power minus 12 meter. Remember this. Over here, I have also given you the conversion factor for 1 liter. Okay, so 1 liter is equals to 1000 ml, 1 liter is equals to 1000 centimeter cube, 1 liter is equals to 10 raised to a minus 3 meter cube, and 1 liter is equals to 1 decimeter cube. It's very important because काफ़ी जगह आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी, ठीक है? And you need to know the conversions because without conversion it will be very difficult for you people to solve the questions. Okay, one more important conversion, 1 electron per volt is equals to 96.485 kilojoule per mole. 1 AMU or 1 U is equals to 1.66 into 10 raised to power minus 27 kg. I think these particular conversions are more than sufficient, but yes, one more thing I want to incorporate, that 1 calorie is equals to 4.184 joule. Very important, ठीक है? सो कन्वर्जन्स जितनी भी हो सके उतनी याद कीजिए. यहाँ मैंने थोड़ी बताई हैं, कुछ आपको पता होंगी. सो कोलैबोरेट देम एंड जस्ट गो फॉर देम. नाउ टॉकिंग अबाउट एटॉमिक मास. क्या होता है एटॉमिक मास? आई जस्ट से मास ऑफ वन एटम और मॉलिक्यूल इन AMU. दैट्स एब्सोल्युटली राइट. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कार्बन के बारे में बात करूँ, सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट 12 AMU. ठीक है. अगर मैं किसके बारे में बात करूँ, अमोनिया के बारे में बात करूँ, तो मैं कहूँगी इट इज़ इक्वल्स टू 17 AMU. आई होप यू गॉट माई पर्टिकुलर पॉइंट. तो एटॉमिक मास मैंने आपको बता दिया, या फिर हम कहेंगे मॉलिकुलर मास, मास ऑफ वन एटम और मॉलिक्यूल इन AMU. मूविंग अहेड, टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट थिंग, एवरेज एटॉमिक मास या क्या है, हाउ वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट एवरेज एटॉमिक मास. इट्स basically what I'm going to talk about, relative abundance of 1 into atomic mass of 1, relative abundance of 2 into atomic mass of 2 divided by relative abundance of 1 plus 2. That's the main thing. Talking about gram atomic mass. gram atomic mass क्या होता है, what you actually talk about gram atomic mass. लेकिन उससे पहले एक बार और क्लैरिफाई कर देती हूँ कि रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में अगर हम बात करते हैं, ठीक है, या फिर हम जब बात करते हैं रिलेटिव मॉलिकुलर मास के बारे में. Okay, so when I just talk about relative atomic mass, when I just talk about relative atomic mass, I'm talking about relative atomic mass, fine, or you can say relative molecular mass. ठीक है, फाइन. सो क्या कहेंगे, मास ऑफ वन एटम और मॉलिक्यूल विद रिस्पेक्ट टू 1/12 और कार्बन 12 एटम.
यू गेटिंग माई पॉइंट ना? येस. सो रिलेटिव एटॉमिक मास या रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? इट इज़ बेसिकली मास ऑफ वन एटम, mass of one atom or molecule with respect to 1/12 or carbon 12 atom. ठीक है, दैट इज़ व्हाट आई वांट टू टॉक अबाउट. तो हमने अभी तक क्या क्या डिस्कस कर लिया है? वी टॉक्ड अबाउट द कन्वर्जन्स, वी टॉक्ड अबाउट द एटमिक मास और मॉलिक्यूलर मास, वी टॉक्ड अबाउट द एवरेज एटमिक मास, वी टॉक्ड अबाउट द रिलेटिव एटमिक मास और रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास. अब हम बात करते हैं ग्राम एटमिक मास के बारे में, या फिर हम ये भी कह सकते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास. सो इट इज़ बेसिकली द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम और मॉलिक्यूल. ठीक है, जैसे कि अगर मुझे कार्बन के बारे में बात करना है सो इट्स 12 ग्राम. मैं CO2 के बारे में बात करूंगी सो इट्स 44 ग्राम्स. ठीक है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मोलर मास. आई होप दिस इज ऑल्सो बीइंग क्लियर टू यू. जो लिखा हुआ है वो तो पढ़ना ही है, जो मैं बोल रही हूँ वो भी देखते जाइएगा. मूविंग हेड, अब यहाँ पर एक और चीज़ का कन्वर्जन्स आप इजीली देखें. यहाँ पर अगर मैं मोल के बारे में बात करती हूँ तो नाउ आई वांट टू टॉक अबाउट दी डेफिनेशन ऑफ मोल. मोल क्या होता है? 1 मोल इज अ कलेक्शन ऑफ that many entities as there are numbers of atoms exactly in 12 gram of carbon 12 isotope. ठीक है, now 1 mole is equals to 6.023 into 10 raised to power 23 atoms. That is also equals to 1 gram atom, or you can say gram atomic mass. That's absolutely right. In gaseous state at STP, जब हमारा टेम्परेचर और प्रेशर 273 केल्विन, प्रेशर 1 atm है, आप यहाँ देखिए ग्राम मॉलिकुलर मास इज इक्वल्स टू 1 मोल विच इज इक्वल्स टू 22.4 लीटर्स. दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 6.022 10 raised to power 23 मॉलिक्यूल्स. ये जो टेबल मैंने बनाई है काफ़ी बार बताई हुई भी है, ये कन्वर्जन वाली टेबल्स हैं. आई थिंक यू शुड गो फॉर इट कि किस तरह से हम मोल्स को नंबर ऑफ एंटिटीज़ में कन्वर्ट करेंगे, मोल्स को अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट मीन्स ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे, मोल्स को वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर एट STP कन्वर्ट करेंगे एंड वाइस वर्सा. दिस इज़ व्हाट यू नीड टू एक्चुअली हैव इन टू योर माइंड. मोर ओवर एक और मैंने यहाँ पर छोटा सा एक्सप्रेशन दिया है, मॉलिकुलर मास इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी. अब वेपर डेंसिटी होता क्या है? रेशियो ऑफ डेंसिटीज. इट्स बेसिकली द रेशियो ऑफ डेंसिटी किसकी? ऑफ द वेपर, ओके, टू द डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन at similar pressure and temperature condition. So vapor density is equals to half of molar mass, and this is what you have to actually learn for. बात करते हैं अब हम स्टोकियोमेट्री की. व्हाट यू एक्चुअली मीन बाय स्टोकियोमेट्री? क्या हम समझते हैं आप स्टोकियोमेट्री से? होप यू हैव समथिंग इन योर माइंड. आई थिंक प्रोबेबली यू हैव समथिंग इन योर माइंड रिगार्डिंग कि भाई मैम स्टोकियोमेट्री तो ये होता है. यहाँ जो लिखा हुआ है वो अलग बात है, लेकिन आप यहाँ पर देखिए, अगर मैं लिखती हूँ A of A प्लस B of B गिविंग अस C of C प्लस D of D, अगर मैं ये वाली बात कहती हूँ सो A B C and D, स्मॉल A B C D, A B C and D, ये जो स्मॉल A B C D है ना, दे रिप्रेजेंट्स व्हाट्स द रेशियो ऑफ मोल्स. दे रिप्रेजेंट व्हाट? द रेशियो ऑफ मोल्स वॉल्यूम्स फॉर गैसियस मॉलिक्यूल in which you can say the reactants react or products are formed. So A, B, C, D, small A, B, C, D जो होते हैं, they does not represent the ratio of masses. You getting things clear over here? So small A, B, C, D, they represents the ratio of moles, volumes within bracket आप लिखेंगे for gaseous molecules in which the reactant products are formed. That's absolutely right. Yes. Now A, B, C, D does not represent the ratio of masses. Fine. Now the stoichiometric amount of components, they may be actually related as, जैसे मैं ये कह सकती हूँ कि moles of A reacted by small a is equals to moles of B reacted by small b, which is also equals to moles of C formed, which is equals to moles of C formed by small c, which is also equals to moles of D formed by small d. मैं एक बार हट जाती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए यहाँ पर. आई होप दैट्स एब्सोल्युटली बीइंग क्लियर टू यू गाइज. क्लियर है? हाँ जी. तो इस स्टोकियोमेट्री के बारे में मैंने आपको बता दिया है. लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? मैंने लिखा है इट इज़ द रिएक्टेंट जो कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाए ड्यूरिंग द रिएक्शन. और एक्सेस रिएजेंट क्या होता है? इट इज़ द रिएक्टेंट विच इज़ नॉट कम्प्लीटली कंज्यूम्ड and it remains unreacted during the reaction.
ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट पे मैंने एक वाईटी शॉर्ट बनाया है, उसको ज़रूर देखिएगा, आपको पता चल जाएगा चुटकियों के अंदर, सेकंड्स के अंदर, कि किस तरह से हम लिमिटिंग रिएजेंट को कैलकुलेट आउट कर सकते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द परसेंट यील्ड, मैं ये कहना चाहूँगी इसके बारे में, द परसेंटेज ऑफ अ स्पेसिफाइड कंपाउंड और एलिमेंट इन एन what, just let me know, in an impure sample, ठीक है। so the percentage of a specified compound, परसेंटेज यील्ड के बारे में हम बात कर रहे हैं या परसेंटेज प्योरिटी के बारे में हम जब बात करते हैं, हम क्या कहते हैं, द परसेंटेज ऑफ अ स्पेसिफाइड कंपाउंड और एलिमेंट इन एन इम्प्योर सैम्पल, it is actually being given by this particular formula. Go with these particular formulas. Now let's talk about the methods of expressing concentrations of the solution. percentage by weight, क्या होता है परसेंटेज बाय वेट के बारे में अगर मैं बात करती हूँ, परसेंटेज बाय मास कह लो, परसेंटेज बाय वेट कह लो, मैं यहाँ कहूँगी कि मास ऑफ अ सोल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 100 ग्राम्स ऑफ द सोल्यूशन, वही लिखा हुआ है। इसका फॉर्मूला देखिए, वेट ऑफ अ सोल्यूट बाय वेट ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। इंपॉर्टेंट है क्योंकि आ जाता है, तो शॉर्ट नोट्स बनाते समय ये ज़रूर मेंशन कीजिएगा। परसेंटेज बाय वॉल्यूम का मतलब यहाँ पर क्या है, मतलब मैं बात कर रही हूँ वॉल्यूम परसेंटेज की। सो इन अ वे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट विद इन ब्रैकेट लिखिए इन सेंटीमीटर क्यूब प्रेजेंट इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ अ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ अ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। आप कहेंगे मैम यहाँ ml लिखा है, तो अभी तो बताया था आपको 1 ml इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, वो कन्वर्जन आपको याद करनी पड़ेंगी, है ना। दैट्स एब्सोल्युटली राइट। या नाउ परसेंटेज ऑफ मास बाय वॉल्यूम, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम के बारे में आप क्या कहेंगे, या फिर मास वॉल्यूम परसेंटेज के बारे में क्या कहेंगे, आप लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूट, वो भी ग्राम्स में, प्रेजेंट इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सोल्यूशन, या फिर 100 ml ऑफ अ सोल्यूशन। फॉर्मूला क्या है, वेट ऑफ अ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ अ सोल्यूशन इनटू 100। नेक्स्ट पे बात करते हैं मोल फ्रैक्शन क्या है, कैसे आप मोल फ्रैक्शन को डिफाइन करते हैं। तो मैं ये सिंपल से लैंग्वेज में बोलूँगी, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कॉम्पोनेंट, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कॉम्पोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स, वही हमने रिप्रेजेंट किया है। जैसे मोल फ्रैक्शन मुझे निकालना है ए का, मेरे पास एक सोल्यूशन है जिसमें ए भी है और बी भी है, लेकिन मुझे मोल फ्रैक्शन पता करना है ए का। तो ए का मोल फ्रैक्शन मैं कैसे पता करूंगी, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस बी, सो Na अपॉन Na प्लस Nb। सेम इज द केस विद मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, और हमेशा याद रखना कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल्स टू 1। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है, इट्स द पार्ट्स बाय मास, लिख लो यहाँ पर, इट्स द पार्ट्स बाय मास, पार्ट्स बाय मास of solute per million, parts by mass of solution, ये आपको याद रखना है। दैट्स एब्सोल्युटली राइट। हाँ जी, फॉर्मूला यहाँ आपको गिवन है, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट अपॉन द टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁶। इंपॉर्टेंट है। टॉकिंग अबाउट मोलारिटी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में आता ही आता है, कनेक्टेड आता है, क्वेश्चंस कनेक्टेड रहते हैं। सो इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ लीटर ऑफ अ सोल्यूशन। सो हियर इज द फॉर्मूला, यू कैन जस्ट राइट इट नाइसली। अब बात करते हैं मिक्सिंग ऑफ सोल्यूशंस के बारे में। The last thing I'm going to talk about over here, so it is based on law of conservation of moles basically. So यहाँ पर ध्यान रखना कि two solutions जिनके same solute हैं, two solutions having same solute, two solutions having same solute, having same solute, जब ये हमारे पास condition आए, so final molarity क्या होगी, so final molarity will be equals to total moles जो कि है m1v1 प्लस m2v2 बाय v1 प्लस v2 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये वाली। और बात करते हैं डाइल्यूशन इफेक्ट के बारे में। तो उस केस में फाइनल मोलारिटी कितनी है, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये मैंने आपको बताया है यहाँ पर। सो फाइनल मोलारिटी इस केस में कितनी हो जाएगी, अगर मैं डाइल्यूशन वाले लॉ के बारे में बात करती हूँ तो इस केस में हमारा जो, अगर मैं इस केस में बात करूँ, फाइनल मोलारिटी कितनी होगी, m2 इज इक्वल्स टू m1v1 बाय v1 प्लस v2 हो जाएगा। I think this is absolutely making sense to you guys. Okay, that's absolutely right. So these were the short notes for the very first chapter of your 11th class chemistry that are going to help you a lot in your coming JEE Mains examination. तो जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं उन सबको, देखो मैंने तो आपको यहाँ पर बता दिया, लेकिन जिम्मेदारी आपकी है कि आपको लिखना पड़ेगा, लिखेंगे ना तो ही याद होगा।
और आपको एक बात बताना चाहती हूँ, एक टिप देना चाहती हूँ, दूसरों के नोट्स में से पढ़ा नहीं जाता। जब तक कि आप अपने खुद के नोट्स नहीं बनाएंगे वो फील नहीं आएगी कि ये मेरे नोट्स हैं, मुझे शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने हैं। तो एज प्रॉमिस्ड आई हैव गिवन यू द शॉर्ट नोट्स ऑफ द वेरी फर्स्ट चैप्टर, मोल कॉन्सेप्ट। अभी पाइपलाइन में इट्स atomic structure, the next one. So just wait for that particular thing also, and for that you need to actually subscribe the channel, share this particular session as much as possible. Thank you and bye bye.